Good evening, everyone. Thank you, Good Akhi. Thank evening. you, Vikrant. Thank you, Arunji. Thank you, Ashish. Thank you, Anshu. Thank you so much for coming on the show. 65 Good days of evening. lockdown. एक memorable experience बताइए. Memorable as such, the good thing has happened that I have gone back to things which were left behind for something or the other, for some unknown reasons. Yeah. I don't know. Maybe we were busy in our career and our future and securing all those things. But this time I got time to get back to things which were left behind, which was much more of me, what I love to do, what I wanted to do. I got time to go back to those things in these 70-75 days. See, I am blessed that I'm in Mumbai. I'm staying in Mumbai for my work. But in that blessing, I am disguised of my family. I am not able to stay with them. So because of this lockdown, from day one till now, I am with my family. And work is still going on. The best part is that I'm working and I'm also with my family. Memorable means I'm like a technical guy. I read only technical books, but this time I have read like many books. That was my memorable thing. And I did regularly yoga for 65 days. That is one more achievement for me. There has been a speculation about when the film shooting will start, when this will all happen. On when it shall happen, I think that it should happen, yes, pretty much soon. It will happen like in within about say 20 days time. Small shoots will take off, definitely. The ball has to set rolling. Definitely we'll have to do that with all the speculations, precautions that we need to take. And somebody has to set particular standards of how carefully we can shoot, what all things we should consider, the norms specified by all the associations. Some actors will have to come forward and set an example of how things can go ahead under controlled things, like under controlled situations or manner. This is how we'll have to start off initially, but it has to go on. Say, I think about in 20 days time shootings will start. This is what I have come to know from the production houses which are planning their shoot in near future. I think shootings will begin in the month of July. And mostly I'm talking about serious shooting, not just like non-fiction or fiction. So they will start initially with uh, the schedule which were incomplete, the shows which were like closed due to this corona thing. So they will start first, and safety measures will be taken. Like right now, I am hearing from the industry people, they already started like how to plan out the things and this thing. Obviously, there will be a crew wise. We have to cut down the crew. Everybody is planning that only. Like maximum, they want to go with 60 people. That is good. And initially they will start with smaller projects. Not big projects will not go on floor. But I heard that 2 days back, like Mr. Bansali started shooting. Okay, with Alia Bhatt. That's insider news. I don't know what the confirmation is. That's good. They are doing inside Reliance Studio. I heard that. So that's happening. It's a mainstream cinema. I think Bansal is a guy. We heard that he never compromise on quality and aesthetical sense of the cinema. So let's see how they will shoot. तो फियर लेके हम लोग एक सेट पे घुसने वाले हैं. एंड इफ यू शूटिंग से फॉर 5 डेज, सी बहुत सारे चीज उसके अंदर गाइडलाइंस में काफी कुछ आप आज शूट करके वापस घर जाते हो, देन द नेक्स्ट डे वापस आते हो. सो यू डोंट, आई डोंट नो वेयर यू विल बी गोइंग टू, वेयर यू विल बी कमिंग फ्रॉम. देयर विल बी दैट फियर इनसाइड अस. उसको ओवरकम करना. I'm sure कि not just me and not just in this industry, every other person जो अब इस लॉकडाउन के बाद घर से बाहर निकलेगा, वो एक फियर लेके निकलेगा, which is but obvious. लेकिन वो जो फियर है ना, वो एक प्रोबेबल फियर है, श्योर नहीं है. आई एम नॉट श्योर कि मैं बाहर निकलूंगी तो कोविड साथ लेकर ही आऊंगी. इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, अ वेरी लेस परसेंटाइल प्रोबेबिलिटी. तो फियर से लड़ना ही आई गेस हम सबका एक काम है.
क्योंकि कोविड को नहीं भी ले तो भी हमारे घर से बाहर निकलने की कोई गारंटी नहीं कि हम सही सलामत घर वापस आएंगे। कहते हैं ना कि मौत एक बार मारती है लेकिन डर हर बार मारता है। तो डरना ही नहीं है, आई गेस दैट इज द गेम फॉर मी। प्रिकॉशंस मेरे हिसाब से मैं लेके जाऊंगी, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके जाऊंगी और वहां जाकर भी आई विल मैनेज। अच्छा, कोविड की बेस्ट बात क्या है कि आई वांट टू मेक डिस्टेंस विद पीपल एंड पीपल आल्सो वांट टू मेक डिस्टेंस विद मी। इट इज नॉट इवन विद छोटा आदमी, बड़ा आदमी, इस धर्म का आदमी, उस धर्म का आदमी, इट्स जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। तो जितना मुझे दूसरों से डर है, दूसरों को मुझसे भी उतना डर है। तो ऐसा नहीं है कि वो मुझसे चिपकेंगे और मैं नहीं, एवरीबडी विल मेंटेन अ डिस्टेंस। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड आई विल गो ऑन सेट। और जो थोड़ा बहुत फियर भी होगा वो शायद 1 शॉट 2 शॉट तक रहेगा। लंच के बाद मुझे फिर सब कुछ यूजुअल लगने लगेगा। आई विल बी ऑन ट्रैक। और मैं ही नहीं, एवरीबडी, दिस इज व्हाट आई फील। The many shoots are planning nowadays. Everybody is ready to go on floor. The things I am hearing like that, but that's good. But I heard that they are planning in a such a way like they will take whole crew to outdoor. They will place all crew in the same hotel, and they are shooting together, and they are monitored on day-to-day basis. And Okay. there will be onboard doctor for that, and Okay. they are using PE kits shooting. And what I say, like they are trying to take almost all precautions. Only thing, they are cutting the crew. That's for sure. Oh. Okay. Everything. I don't think all big DPs don't get that comfort like Dolly and this thing. They have to use not on a regular basis. Like if something they needed for the shot very specifically, then only it will come. Otherwise, like DP like us, Dolly is a luxury for us. Okay, we don't call that for regular basis, and we have to stick with the tripod. And nowadays there is an advantage where DP used to work with two people always, like on a camera operator, like a DOP or operator who operates the camera, and there is a focus puller who is very close to the DP. But now that thing has taken out because there is a equipment called remote focus pulling. Okay, so they attach it and the focus puller stays somewhere far. That is the advantage. Great. So DOP is alone, operating alone. That's safer for DOP, and rest they have to manage accordingly. No, we'll have to live with this actually. There is no other option to it. Only thing is we'll have to be cautious. Everybody is responsible for everyone on the set. तो शूटिंग के बाद में कोई किधर जाता है, कहाँ जाता है, वो तो पता करना मुश्किल है, पर उसको इतना तो हम समझा सकते हैं कि भाई जाना नहीं शूटिंग होने तक कहीं पे. He has to be careful. And secondly is see nowadays other industries, not only us, but there are lot other industries which are much more crowded than us. See, like Zaveri Bazaar or the jewelry bakers जैसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे एक रूम में 20-20, 30-30 लोग एक साथ बैठ के काम करते हैं, but still they are running. उन लोग ने सब precautions लिए हैं. सुबह जब आते हैं तो literally they go through a shower of sanitizers. You know, we can do something such things कि even police इन सब ने ये arrangement किया है. तो आदमी जब आता है तो literally passes through that shower, so you are sanitized thoroughly. फिर एक second आप कर सकते हैं कि use of gloves, then mask, then whatever things. खाना तो we'll have to forget, वो तो अपने norms में भी दिया है कि most of us should carry their own food, अपने घर से लाना है. So that is the safest thing to happen. बाकी जो चीजें हैं वो सैनिटाइज करने के लिए हमारे पास सारी इक्विपमेंट्स तो है ही, साथ में स्प्रेज है, वो है. So we'll have to cope with these things, और कहीं ना कहीं we'll have to believe in what we are doing, like sanitization process or the people on the set, because even before starting the shoots we'll have to thoroughly check each and every actor, each and every team member. He should come up with a doctor's certificate that he is completely fit and ready to go on floor. Then rest we have the guns and all in place to measure the temperatures and rest of the things. But we cannot stop because of this. We'll have to carry it on. We'll have to design the shoots in such manner
that minimum people will be there on this set. Because देखिए एक बार अभी हम सबको पता है कि how we shoot, कि जितने जरूरत है लोगों की उतने ही सेट पे रहेंगे. Rest of the people can be left out or stay away from the main set wherever we are shooting. Vikrant, Yeah. the guidelines is quite okay with big time producers, big budget films. But if it comes to a medium low budget film, you are only adding on to the cost per day, an average of say 70-80,000. Then what happens to the medium and low budget filmmakers? See now, as they say, this is the new normal. So this is what we are going to face for next minimum 2 years. Even if this passes away, people say that there is a vaccine in place, but still the dangers remains of corona. So now we'll have to cope with all these things. There are several other ways to cut down cost. We'll have to find out different modes or different ways to cope with all these things. First of all, budgets will come down for sure. Yeah. Even if the main lead actors, they can cut down little bit. I'm not saying all. See, nowadays all the employees or the monthly wages, they all have cut down their fees. They have all cut down their salaries by 10%, 15%. See, if big actor cuts down his salary, say, or his remuneration, say by 10 lakhs or say by 1 crore for the bigger actors or whatever, lot of small wagers will be benefited by it, you know. So that's how we'll have to look at things. Important is to keep the ball rolling. Film shooting should carry on. It should take place, and this is the only way out that we can cope with this situation presently. Like cutting down the cost, but keep the ball rolling. देखिए, जो अभी हम लोग ये अपना छोटे बजट वाली प्रोग्राम करते हैं, तो ये चाहे छोटे बजट का सीरियल हो या बड़े बजट का सीरियल हो या फिल्म हो या वेब सीरीज हो, सब में अभी 20% का बजट इजाफा हो गया है फॉर प्रिकॉशन और अपना सेफ्टी, जिसके अंदर में आपको सबको मास्क, शील्ड, ग्लव्स और पीपीई किट, सैनिटाइजर, ये सब प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. आदमी को अपने से ज्यादा दूसरे की जान के सुरक्षा के लिए ये सारा चीज पहले से व्यवस्था करने के लिए, इसमें पहले 100 रुपए का अगर बजट होता था तो अभी उसको 80 रुपए ही समझे और 20 रुपया ये सेफ्टी के लिए अब ज्यादा हमारा खर्चा होगा. तो अब मेरे हिसाब से या तो ये जो जितना भी छोटे छोटे बजट वाले हैं, जिस तरह से हमारा फेडरेशन और ये बोलता है कि आप कम से कम यूनिट में शूट करो, जितना कम से कम हो सकता है उतना में काम करो, एक बार जहां जाओ वहीं पे रुको, वहीं पे आना नो जाना, एक ही जगह पे अपने घर का खाना बनाओ, वहीं पे खाओ. तो जो गाइडलाइन जारी हो रही है, ये सब चीज मुझे लगता है कि फेडरेशन में हमसे भी बढ़िया बढ़िया सब लोग दिमाग लगा के सब सोच के बैठे हैं. और जाहिर सी बात है, सबको रोजी, सबको काम, सबको सब, इस समय किसी के पास न पैसा बचा हुआ है, न काम है, न कुछ है. तो इन सबों को लिए जो ये फेडरेशन ने अपना गाइडलाइन जारी किया है, उसके हिसाब से अपना छोटा सा यूनिट जितना से कम में करके, अभी हालत क्या हो गई, आज 95-96 वाली पेमेंट की स्थिति फिर से आ गई है. अब इस समय कुछ दिनों में यही होगा कि अगर आपको 10 रुपया मिलता था तो प्रोड्यूसर लोग आपको 10 रुपए के बदले 7 रुपया देंगे या 6 रुपया देंगे, इतने में ही काम करो. ये इस तरह से मैनिपुलेट करके कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा. ये नहीं है कि आपको फिर कोई बजट बढ़ाने वाला है, कोई बजट नहीं करने वाला. इवन कि आप चैनल से भी देख लीजिए, तो चैनल से भी जो पहले बजट मिलता था, अब वो बजट आने वाला भी नहीं है, और इसी तरह से करना पड़ेगा. अरुण जी, नया जो सर्कुलर आया उसके हिसाब से 60+ एक्टर्स को थोड़ा साइडलाइन करने को बोला है. सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं, उनको कोरोना जल्दी इफेक्ट करेगा करके उनके रोल्स या तो क्लिप किए जाएंगे या उनको बहुत मिनिमल यूज किया जाए. संजय जी, मुझे आप ये बात बताइए कि मैं रोज न्यूज देखता हूं, मैंने आज तक एक भी आदमी जो है 60 साल का जिसको कोरोना हुआ, वायरस हुआ हो, वो मैंने एक भी पेशेंट नहीं देखा. जितने पेशेंट मैंने देखे हैं सब 40, 45, 35 साल, 50 के आसपास जो मरे भी हैं, वही यही वो लोग मरे हैं. और ये तो लोग कहते हैं कि 60 साल के बड़े आदमी को काम नहीं मिलेगा,
मेरे को आप ये बताइए कि सीरियल के अंदर जो रनिंग रोल कर रहे हैं उनको क्या ये बाहर निकालेंगे, उनको चेंज करेंगे और यंग लड़के को उसका मेकअप देकर उसको बिठाएंगे कि ये आगे आगे काम तुम करो। और ये जो इंडस्ट्री के अंदर धुरंधर सारे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो है जो 60 साल 65 70 साल के लोग हैं जो लगातार काम करते आ रहे हैं, क्या इनको काम करना बंद करेंगे? इनको लोग क्या ये लोग का काम करना बंद कर देंगे? इनको काम करना बंद कराएंगे? नहीं कराएंगे ना। तो फिर हम लोगों के ऊपर गरीब मार क्यों कर रहे हैं? हमारी औकात तो ये है कि हम आज काम करते हैं, हमारे को पेमेंट जो है वो 90 और 100 दिन के बाद मिलती है, और हमारी पेमेंट भी कोई ज्यादा खास नहीं है कि जी हमने एक काम कर लिया, चलो 4 महीने बाद पैसे आएंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा। हमारा बिल्कुल भिखारियों वाली हालत है, हैंड टू माउथ वाली बात है। आज 2.5 महीने हो गए हैं, हमने एक पैसे की कमाई नहीं की है, कर्जा चढ़ गया सर के ऊपर, लोगों से भीख मांग रहे हैं कि हमको थोड़ा हेल्प कर दो। सिंटा ने 4,000 रुपया दिया, सलमान खान ने 3,000 सब लोगों को बांटा, मेरे को भी नहीं आया, अक्षय कुमार ने 3,000 दिया, बहुत बहुत थैंक्स इन सबका। मैं गवर्नमेंट को ये बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो जो रिटायर हो जाता है उसको पेंशन देती है ना, वो किस लिए देती है? क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम किया है, ठीक है। तो सेम चीज हमारी है ना, हम भी तो जनता का एंटरटेनमेंट करते हैं कि नहीं करते? ये मुझे बताइए। हम कोई ऐसे वो रईस लोग तो है नहीं कि नहीं जी हमारे को तो हमारा खर्चा 50,000 का है, 60,000 का, 1 लाख का खर्चा है। हमारी एवरेज क्या है? हमारी एवरेज वो ये 30-35 हजार महीने की। अगर हमारा ये वो गवर्नमेंट बांध देगी या और कोई लोग बांधेगा तो हमारा गुजारा हो जाएगा। हम बिना काम के हम बताओ, हमको दूसरा और कोई काम तो आता नहीं है, हम दूसरा काम क्या करेंगे बताइए? मैं यहाँ पर मैं बॉम्बे के अंदर 81 से हूँ। आई एम ए वेरी सीनियर एक्टर। मेरी पहली फिल्म थी 1982 में, जाने भी दो यारो, और मेरे साथ के सारे लोग स्टैब्लिश हो गए, मैं स्टैब्लिश नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरा मुकद्दर। पर मैं फिर भी मतलब अपनी हिम्मत नहीं आ रहा, अपनी इस एज में भी मैं पूरा काम कर रहा हूँ। मेरे को खाना बनाने का शौक है, मैं पूरा काम अकेला ही करता हूँ। मुझे 23 साल हो गए अकेले रहते हुए। सीनियर सिटीजन लोग आदमी तो चाहिए ना कि नहीं चाहिए? जैसे अभी खन्ना साहब ने बोला कि 65 साल से बड़े लोगों को आप शूटिंग में मत लो, ठीक, एग्रीड। तो जब अगर 65 साल से ऊपर बंद होगा तो वो सबके लिए बंद होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फेडरेशन ने नियम निकाला है 100% डॉक्टर और सब लोगों से कंसल्ट करके ही निकाला होगा कि या तो उनको बीमारी जल्दी पकड़ती होगी या कुछ ऐसा होगा। इसी तरह से अगर बंद होगा तो सबके लिए बंद होगा, नहीं होगा तो सबके लिए नहीं। There will be another issue. Mediocrity, I think, will take over for some time. As in, because people will always tell us, there aren't many shoots happening, so this is the budget. I think you should take it up. I think you should start shooting. Even actors के साथ भी definitely ये बोला जाएगा काम कम है मार्केट में, तो भाई इतना बजट है इसमें शूट करके। आई थिंक इसमें बहुत सारे जो बी ग्रेड सी ग्रेड इसमें काफी लोग आ जाएंगे, भैया शूट हो रहा है, सो इट विल ओनली बी अबाउट द शूट। डू यू थिंक, आई एम जस्ट आस्किंग, डू यू थिंक content will take a back seat? It will all be about shooting, चलो shooting करते हैं। Like if the leader is result oriented, तो वो पैसा कितना भी दे रहा है, बजट कितना भी होगा, वो ऑडिशन में तो सिलेक्शन उसी का होगा, the one who will give the best performance। आजकल हो रहा है, मेरे पास जितने भी ऑफर्स आ रहे हैं सब कर्टेल हो चुके हैं। जो 20,000 दे रहे थे वो 15 पर आ गए, 50 वाले 40 पर आ गए। इवन आई एम ओके विद इट, क्योंकि मैं भी अब आजकल ग्रीवेंसेस में हूँ, तो मैं भी हर चीज के लिए रेडी हूँ। लेकिन एंड ऑफ द डे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे विद द परफॉर्मेंस। कंटेंट विल ऑलवेज बी बेटर बिकॉज फाइनली हर एक को अपना दुकान तो चलाना ही है। Everybody will try for the better content. So Aki, what's your take on this? Everybody try to exploit this. Like I remembered, I got a check on 15th of March, okay? And when government announced the lockdown on 22nd, the date was of 23rd. And he immediately called, sir, check मत डालो, पैसा ये हो गया वो हो गया। मैंने बोला यार लॉकडाउन तो अब भी हुआ, अभी हुआ पहले किया तभी, एंड अभी ये 3-4 महीना चलेगा तो ये हेल्ड हो जाएगा। So he was cried, sir, मत डालो, बाउंस हो जाएगा। तो I am still holding that check. I don't know when the lockdown will open and when the market, when we'll earn money. It is a 6-month process. Like they are starting exploiting right now only. And there will be cost cut down, okay?
even everyone is crying nowadays only. अरे सर पैसा नहीं है मार्केट में, लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, ऐसा वैसा. That's a industrial trick. I haven't seen any like budget है आप शूटिंग करो. They always say sir budget नहीं है. Any big production or small production, they have a same line of word. That will be there, but we have to choose the right product, right people, and we have to work. Like for this year, we have to survival is the that is there basically survival of the fittest. That applies for this year. जो जिंदा रह गया वो फिर कमा लेगा बाद में, कोई वांदे नहीं कमाने के, बस जिंदा रह जाए तो इसका मतलब हमने जंग जीत ली. The biggest issue in this pandemic has been depression, anxiety. I mean, most of them, they come here with dreams, and then जिसने शुरुआत भी नहीं किया उसके पहले ही, these things happen. First the corona, then the lockdown, and a lot of people, have gone to depression. If I go and tell someone everything is fine, सब कुछ सही है, he will ask me to shut up because the reality is something else. मेरा कहना यह है कि दुनिया में आदमी यूजुअली दुखी तब होता है जब वो कंपटीशन में अपने आप को पीछे पाता है. तो मेरा पहला आंसर तो ये है कि आज की डेट में सभी एक एक स्टेप पीछे आ गए. तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेली पीछे रह गई हूँ. भाई इफ आई एम लॉक डाउन इन माई हाउस एंड अदर एक्ट्रेस आर गिविंग ऑडिशन एंड शूटिंग, तो मेरा डिप्रेशन में आना बनता है कि वाई इट्स जस्ट मी. बट वो पॉइंट तो रहा ही नहीं. इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स नॉट जस्ट माई कंट्री, इट्स द होल वर्ल्ड अंडर दिस एडवर्स सिचुएशन. तो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. And the basic rule is कि सुबह उठकर I am glad to God कि thank God I am not a corona positive. I'm at least I am alive, my family is well. तो मुझे इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा. Because कोई भी मरने का तरीका, मरने के बाद there is no solution. But unless you are alive, you have your same brain, you have your willpower, you are same with the same art and talent, you are alive. जैसे मैंने बोला, मुझसे लोग बोलते हैं अब मुंबई क्या होगा, how will you go back to Mumbai? बिकॉज मुंबई में तो सब काम खराब हो गया है. तो मैंने बोला मैं मुंबई फिर जाऊंगी. मैं मुंबई में सरवाइव कर रही थी बिकॉज ऑफ माई विल पावर एंड बिकॉज ऑफ माई टैलेंट. और कोरोना ने इन दोनों में से कोई भी चीज पे इतना सा भी हार्म नहीं किया. माई टैलेंट इज सेम, माई विल पावर इज सेम. अगर आप लुक की बात करोगे तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो भी सेम है. कोरोना ने कहाँ पे कोई पिंपल ला कर दिया है मेरे को. सो आई एम एज इट इज. इट्स जस्ट द 2, 3, 4, 5 whatever negative month is. It's an अल्प विराम, not a पूर्ण विराम. It's just a comma in our life. That's it. Once the अल्प विराम will be over, everybody will be on track और सब कुछ ठीक होगा. सब लोग अपनी स्टेज से पीछे आए. The one who was living a luxurious life is now in comfort. The one who was in comfort is living a necessity वाली life. तो मेरे साथ क्या हुआ है, मैं जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करती थी ना, बस उस पर खत्म हुआ है. मेरी रोटी दाल चावल में कोई इश्यू नहीं है. एंड जब तक आई एम अलाइव, माई टैलेंट इज देयर, आई विल अगेन अर्न एंड गेट बैक एनी टाइम. तो इट्स प्रैक्टिकल. ये कोई बोलने वाली बड़ी बड़ी बातें नहीं है, सच है सच. अकी, अभी पिछले हफ्ते एक दो शूट देखा, उसके पिक्चर्स व्हाट्सएप पे आए तो काफी लोग बुला के बोले सर अब मेरे पास तो काम नहीं, इन लोग को काम मिल गया है, ये लोग आगे निकल गए हैं. आपका क्या कहना है? मतलब लोग डर गए. No, हाँ नहीं, that's true. Like people are scared. है, डर है सब में. And that तो practical भी है. क्योंकि our industry works in a totally different manner. Okay, we works on project basis. We don't work for continuously for 12 months a year. Okay, हमारे projects होते हैं. Like I think advertising वाले 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का shoot करते हैं. Feature film वाले 60 to 80 days shoot करते हैं. Only the people who shoot more is the television guys. जिनके projects लंबे होते हैं 1 साल 2 साल के लिए. So we are used to this kind of situation, but the worst thing has happened is before Corona also the industry was slowed down, in a mode of slowdown. I'm talking about feature films, okay, mostly because I belong to a feature film industry. वहाँ slowdown था, even TVC market में भी slowdown था. और जब से ये OTT platform, जब वेब सीरीज आए, मेन स्ट्रीम वेब सीरीज जब मार्केट में आए हैं, तब से टेलीविजन में भी ये स्लो डाउन आया है. ओके, तो पहले से ही वो थोड़ा इधर उधर मामला था कि लोगों के पास, किसी के पास है प्रोजेक्ट, किसी के पास नहीं है प्रोजेक्ट. अभी इमीडिएटली ये जो आया कोरोना होने को, जो कम्प्लीटली वर्क जो स्टॉप हुआ है, दैट इज मेजरली जो इफेक्ट कर रहा है, सबको इफेक्ट कर रहा है, बट मेजरली इफेक्ट कर रहा है डे टू डे लेबर्स के लिए. लाइक डेली वेजेस जो करते थे हमारे लाइटमैन,
स्पॉट बाय, आर्ट डिपार्टमेंट, काफी जो डे टू डे बेसिस करते थे। जैसे हम एचओडीज है, वी वर्क ऑन डे टू डे बेसिस होंगे, बट हमारा रेम्यूनेशन और उनके रेम्यूनेशन में फर्क है। वी कैन सर्वाइव फॉर द लॉन्गर पीरियड, उनके लिए महीने में 20 दिन 15 दिन काम करना जरूरी है। ओके, वो तो इफेक्ट किया है एंड काफी लोग वापस घर भी चले गए, ऐसे है कि नहीं है, बिकॉज वो डर गए यहाँ पे। इट्स देखो, हमेशा बॉम्बे में एक तो डर, बॉम्बे इज वेरी एक्सपेंसिव सिटी कंपेयर टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब बैंगलोर कंपेयर करो, दिल्ली करो, बॉम्बे बहुत महंगा है, इट्स अ फैक्ट एक्चुअली। तो लोग इसलिए अपने घर जा रहे हैं। एटलीस्ट मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल में देखा जो बैचलर्स है या शेयरिंग में रहते थे, दे लिटरली वैकेटेड द फ्लैट एंड द मूव ऑन फॉर दिल्ली। भाई अभी 4 महीना क्यों हम यहाँ रेंट दे, 4 महीने बाद आएंगे, 5 महीने बाद आएंगे। दिस इज श्योर मेन स्ट्रीम वर्क जो सिनेमा है, मेन स्ट्रीम सिनेमा विल नॉट स्टार्ट सून। ओके, दे विल वेट, ओके, दे विल वर्क टिल एटलीस्ट अगले साल तक। ओके, और मेन स्ट्रीम फीचर फिल्म ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू वन ऑफ द माई डायरेक्टर फ्रेंड जिसका एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में बहुत हिट शो हुआ है। ही वॉज टॉकिंग, मेरा उसने ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखा हुआ, ओके, सो वो बोलता है मेरा एक सीक्वेंस में आई हैव अ मेन स्ट्रीम एक्टर, ही इज अ जूनियर बच्चन, अभिषेक बच्चन, ही स्टैंडिंग इन अ स्टेडियम। तो मेरे को यार क्राउड मल्टीप्लाई भी करना चाहूंगा, मेरे को 3 से 5 हजार क्राउड चाहिए, मैं लाखों का क्राउड दिखाना चाहता हूँ। तो इस टाइप का उसका रिक्वायरमेंट है। तो दैट show will not go, yeah, that sequence they are not going to shoot in this corona period, yeah, they have to script level पे ही उनको compromise करना पड़ेगा कि भैया नहीं, मेरा आर्टिस्ट ऐसा नहीं खड़ा होगा, 50 लोगों में खड़ा होगा या 100 लोगों के खड़े में होगा। they have to compromise on creative level पे। अगर creatively नहीं कर सकते, अगर वो शूट नहीं करता है, तो they have to push the shoot। घर पे सुरक्षित रहने से तो कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि हम लोग को कोई पेंशन नहीं है, ना ग्रेट्युटी है, ना कुछ है। बाहर निकल के काम ढूंढना पड़ेगा। द प्रॉब्लम है कि काम, जिसके पास काम है उसके पास बहुत काम है, भरमार काम है। जिसके पास काम नहीं है उसके, वो तो घर पे पहले से भी बैठा था, अभी भी ऐसा भी और ज्यादा होने वाला है। डू यू थिंक हम यूनियन को ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे बाहर होता है कि भाई जो घर पे बैठा है उनको कम से कम कहीं ना कहीं काम लगवा के देते? Now the role of associations, the association of choreographers or cinematographers, or for that matter the daily wage workers and all, they will have to play a bigger role now, because it is their responsibility as well to look after all the members. Like as in they'll have to take care that one person shouldn't work on multiple projects. कि अगर एक बंदा है जो 4 प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसने ना करते हुए, क्योंकि वैसे ही देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ कट डाउन ऑन ईच पर्सन, एब्सोल्युटली, ऑन ईच सेट। तो एक आदमी 1 या 2 प्रोजेक्ट्स ही करे और बाकी के 2 जो दूसरे लोग हैं उनको जो दिया जाए, बिकॉज नाउ द एसोसिएशन विल हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि एवरीबडी शुड हैव वर्क। मुझे आज ही आप ही की इस जूम मीटिंग में ये बात दिमाग में आई कि बड़े एक्टर्स जो एक्सट्रीम लेवल पे चार्ज करते हैं, विच इज एक्सट्रीम आउट ऑफ दी, मतलब कोर्ट जाकर के इतना ज्यादा करते हैं, उसको कर्टेल कर रहे हैं। इससे उसकी वजह कि हम किसी स्पॉट बॉय को जॉब से निकालें, हम किसी लाइटमैन को हटाएं, तो लाइटमैन कितना चार्ज करता है रोज का? 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए। उसके बदले में अगर हम किसी का 10,000 रुपए पर डे कट करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। उससे ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट इश्यूज नहीं आएंगे। इनफैक्ट आई तो से कि गवर्नमेंट को ये रूल बना देना चाहिए कि आप कर्टेल करें सबके परसेंटेज। इट कैन बी फॉर मी ऑल्सो, मेरे भी कर्टेल करो। इफ आई एम चार्जिंग 50,000 पर डे फॉर अ कमर्शियल, पे मी 40,000, और उस 10,000 में आप 5 स्पॉट बॉय को रख लो जो उनको काम भी चाहिए और मुझे भी उनकी जरूरत पड़ सकती है और सेट पर भी सभी को जरूरत पड़ सकती है। तो ये तो गाइडलाइंस किसी एसोसिएशन को ही देने होंगे। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे एक एक डिपार्टमेंट में कुछ नहीं तो 20-20 लाख लोग पड़े हुए हैं। अब 20 लाख लोगों के पीछे अब किसके साथ में किसका सेटिंग है, किसके साथ में किसका जमता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। ऐसे फेडरेशन को हम नहीं बोल सकते कि आप सबको उठा के काम पे दीजिए, लेकिन हाँ, फेडरेशन ऐसा करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती, करती है। उसको लगता है कि जैसे कोई आदमी ने पूछा, कोई जैसे हम लोग प्रोड्यूसर, हम लोग कुछ बना रहे हैं, तो हमको लगता है कि ये कैमरामैन को लेना चाहिए या उसको लेना चाहिए, तो वो लोग हमें
बताते भी हैं कि आप इनको ले लीजिए, ये अच्छे हैं, ये अभी घर पे है, तो वो लोग रोलिंग करना चाहते हैं और करते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करते। एकदम फेडरेशन हमारे एकदम आगे पीछे घूमती है। लोग बोलते हैं ना कि हमारा फेडरेशन कुछ नहीं कर रहा है, वो गलत है। प्रोड्यूसर एसोसिएशन हो चाहे डायरेक्टर एसोसिएशन हो, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो आजकल का माहौल चल रहा है, जितना छोटे से छोटे में, जितना अच्छे से अच्छे में यूनिट लेके जाए, सेफ रहे, सेफ्टी फर्स्ट है। इसके अलावा अभी ये मुझे तो लगता है ये सारा बवाल चलते चलते कोरोना का 5-6 महीना 4 महीना और अगर निकला तो बहुत लोगों के पास तो कुछ काम है नहीं, उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने और फेडरेशन ने डिसाइड किया है कि यही 8 जून से आप लोग शूटिंग के लिए जा सकते हो, और उस जाने में फिर से अपना वही वापस वेब सीरीज फिल्म सब शुरू हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे इसमें भी वाउचर्स गिरे हैं, जरूरत है नहीं है वो पूछा नहीं उन्होंने, सीधे डाल दिए। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट आर बिल्कुल 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 सारे एसोसिएशन ने, मतलब चाहे वो स्पॉट बॉय हो टू डायरेक्टर टू एक्टर, सबको उन्होंने ये नहीं देखा कि इस एक्टर के पास पैसा है या नहीं है, या ये डायरेक्टर बहुत बड़ा है या ये छोटा है, नहीं, उन्होंने इक्वली सब में सारा चीज डिस्ट्रीब्यूट किया। पैसा भी दिया, वाउचर भी दिया। और अब मुझे लगता है कि जहां तक काम का ये लोग आगे का जो ये ट्रेंड बनाएंगे, हो सकता है कि ये भी इस पे भी कुछ विचार किया जा रहा होगा, आएगा बहुत जल्दी। ये सब आगे के भी गाइडलाइन के हिसाब से सारे रूल रेगुलेशन क्लियर होंगे। वी हैव सर्वाइव्ड बिगर स्टॉर्म्स, यू नो, यूजुअली हमारा एवरेज 20 साल 25 साल वाले बैठे हुए। थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। Thank you very much for Thank you. Thank you, Vikrant. Thank Thank you, you so Abhi. much, Sanjay. Thank you Bye, so much. Vikrant sir. Bye. Thank you. Thank you. Nice pleasure meeting you all. Take care. Same here. Same Same here, here. same Thank here. you so much, Ansh. Thank you. Thanks Thanks, Sanjay Sanjay. for this thing. It was Yeah. a great experience. आप जिस experience की बात कर रहे थे कि any memorable incident, this is one of them. Wow. How cute.